بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی سربراہی مریم اورنگزیب کریں گی۔ ٹرانسپورٹرز نمائندے بھی شامل ہیں۔ ٹریفک جرمانوں اور مقدمات کے اندراج کے باعث 5 روز سے ہڑتال کی جا رہی تھی۔ ہم آج اپنی اس کال کو واپس لیتے ہیں، ہم ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ مرکزی صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس اور دیگر عہدیداران کے قرارداد پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ آج صبح سے کچھ 1-2 مسئلے تھے جس کی وجہ سے معاملہ رکے ہوئے تھے، الحمدللہ کہ وہ تمام ہمارے مسائل جو کچھ سکم تھے انہوں نے ختم کر کے ہمارے چارٹ آف ڈیمانڈ کو تسلیم کر لیا۔ ہم آج اپنی اس کال کو واپس لیتے ہیں، ہم ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے، مطالبات مان لیے، اب باقاعدہ طور پر مزدے سڑکوں پر نکلیں گے۔ ہمارے سینئر منسٹر صاحبان تھے، سیکٹری صاحبان تھے، ہمارے پولیس کے صاحبان تھے، ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی جس میں بہت ساری چیزیں ہماری ان کے ساتھ طے ہو گئیں۔ میں سب سے پہلے سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سنا اور احکامات دیے کہ ٹرانسپورٹروں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کیے جائیں، ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کریں گی۔ ٹرانسپورٹرز نمائندے بھی شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے۔ مذاکرات میں محمد ریاض خان تاجک، چودھری مقبول حسین، رانا طارق مشتاق کی شرکت۔ ملک اعجاز، ملک معروف، سیف شاہ دین گجر، فیصل بشیر بھٹی شریک ہوئے۔ ملک جاوید اور حاجی پرویز آوان سمیت ٹرانسپورٹرز کے دیگر نمائندے بھی شریک تھے۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ پنجاب کے دل میں آلودگی نے گھر کر لیا، فضا زہریلی رہنے لگی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور کی فضا آلودہ اور مضر صحت، باغوں کے شہر کے آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ آلودگی کی شرح 587 ریکارڈ کی گئی۔ صبح کے وقت شہر کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 900 سے زیادہ رہی۔ برکی روڈ 956، بیدیاں روڈ 499، ڈی ایچ اے فیز 5 382، عسکری 10 378، گلبرگ 2 285، برکی روڈ 278، سول سیکریٹریٹ 260، اقبال ٹاؤن 242، جوہر ٹاؤن 241 شرح ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور کھلی فضا میں ورزش سے گریز کی ہدایت کی ہے، ساتھ ہی ماسک لگانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، غیر قانونی پارکنگ بھی ٹریفک پولیس کے ریڈار پر۔ میرج ہالز، مارکیٹ، سٹورز، کمرشل مارکیٹس کو نوٹسز بھجوا دیے گئے۔ غیر قانونی پارکنگ سے روکنے کے لیے 3 دن کے لیگل نوٹسز بھجوائے گئے ہیں۔ لکھا گیا مین روڈز اور سروس روڈز پر غیر قانونی پارکنگ نہ کی جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، غیر قانونی پارکنگ بھی ٹریفک پولیس کے ریڈار پر آ گئی۔ میرج ہالز، مارکیٹ، سٹورز، کمرشل مارکیٹس کو نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی پارکنگ سے روکنے کے لیے 3 دن کے لیگل نوٹسز بھجوائے گئے۔ لکھا گیا مین روڈز اور سروس روڈز پر غیر قانونی پارکنگ نہ کی جائے۔ سرکاری نوکری اب لم سم تنخواہ پر ملے گی۔ بھرتیوں کو پے پیکج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ بنیادی پے اسکیل کے تحت بھرتی کا طریقہ کار ختم کرنے کی تجویز منظور۔ ریگولرائزیشن آف سروس بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس تنسیخ بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد منظوری کے لیے قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری ملازمت کے خواہش مندوں کی بھرتی پر اب بیسک تنخواہ کی جگہ لم سم تنخواہ ملے گی۔
जबकि हुकूमत का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दीली करने का फैसला भी किया गया। बिल में बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीक़ाकार खत्म करने की तजवीज दी गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। बिल के मतन के मुताबिक खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया गया है, जबकि बुनियादी पे स्केल से खजाने पर पेंशन की मद में ज्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए लमसम पे स्केल के लिए नई कानून साजी की। हुकूमत की अदम तवज्जो या मामला नजरों से ओझल। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब का ओहदा 2 माह से खाली। सितंबर में डीजी हेल्थ डॉक्टर खलील की रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली हुआ। मुस्तकिल डीजी हेल्थ ना होने से सेहत आमा के तमाम प्रोग्राम्स मुतासिर हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हुकूमत की अदम तवज्जो या मामला नजरों से ओझल। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब का ओहदा 2 माह से खाली है। सितंबर में डीजी हेल्थ डॉक्टर खलील की रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली हुआ था। मुस्तकिल डीजी हेल्थ ना होने से सेहत आमा के तमाम प्रोग्राम्स मुतासिर हो रहे हैं। आटा गैर मायारी, बेजायका और रबड़ जैसी रोटी। सरकारी निर्ख पर मिलने वाले आटे का मायार इंतहाई नाकिस। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। मार्केट में सार्फिन मुकामी चीनी की आमद के मुंतज़िर हैं। बारीक चीनी सार्फिन को एक आंख नहीं भाई। दुकानदार तबका भी परेशान है। आटा गैर मायारी है, बेजायका और रबड़ जैसी रोटी। सरकारी निर्ख पर मिलने वाले आटे का मायार इंतहाई नाकिस। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। मार्केट में सार्फिन मुकामी चीनी की आमद के मुंतज़िर। बारीक चीनी सार्फिन को एक आंख नहीं भाई। दुकानदार तबका भी परेशान है। रोटी जब बन जाती है तो वो रबड़ की जैसे उसको खींच सकते हैं, तो इससे तो सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। हमारी सीएम साहब से यही दरख्वास्त है कि आप हॉस्पिटल तो बना रही हैं लोगों की सेहत के लिए, लेकिन इस खुराक के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और ये जो मिलावट माफिया किया जा रहा है, लोगों के साथ सेहत के साथ खेला जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट मंजूर। 1 अरब रुपए के फंड्स भी रिलीज कर दिए। उधर LDA का सरकारी सतह पर पहले पैडल कोर्ट की तामीर का टेंडर फाइनल। गार्डन टाउन अली पार्क में 18 करोड़ की लागत से 3 पैडल कोर्ट्स, प्ले एरियाज और वॉकवेज बनाए जाएंगे। लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फरोग। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अहम इकदाम उठा लिया। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और बस स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 अरब रुपए से ज्यादा की ग्रांट जारी कर दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की दरखास्त पर पंजाब काबीना ने समरी की मंजूरी दी। LDA का सरकारी सतह पर पहले पैदल कोर्ट की तामीर का टेंडर फाइनल। गार्डन टाउन अली पार्क में 18 करोड़ की लागत से 3 पैदल कोर्ट्स, प्ले एरियाज और वॉकवेज बनाए जाएंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 ने कॉन्ट्रैक्टर PDL कंपनी को अवार्ड किया है। LDA पैडल कोर्ट बनाकर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के जरिए ऑपरेट करेगा। इससे कबल अली पार्क में जेर जमीन वाटर टैंक पासा की जानिब से बनाया गया था। निस्फ माली साल गुजर गया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का PC1 अब तक मंजूर ना हो सका। 54 अरब मालियत के मेगा मेडिकल मंसूबे पर अमली काम लटक कर रह गया। निस्फ माली साल गुजरने के बावजूद नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का PC1 ताहाल मंजूर ना हो सका। 54 अरब मालियत के मेगा मेडिकल मंसूबे पर अमली काम शुरू ना होने से इल्तिवा का शिकार है। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025-26 में 6 अरब 28 करोड़ मुख्तस किए गए, मगर फंड्स जारी ना हो सके। मंसूबे में चिल्ड्रन अस्पताल फेज 2, कार्डिक इंस्टीट्यूट और मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए IDAP को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नामजद किया गया। स्टीयरिंग कमेटी कायम, मगर PC1 ताहाल P&D बोर्ड को ना भेजा जा सका। मेगा मंसूबे में ताखीर से लागत में इजाफा हो सकता है। IDAP हुकाम के मुताबिक मंसूबा तकनीकी तौर पर पेचीदा और बड़ा है। तमाम स्कीमों के PC1 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने नासिर बाग और दीगर मंसूबों पर इजहार तशवीश। 804 पार्कों के हवाले से पॉलिसी बनाने का हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मुख्तदारों केस में कहा, इन्वेस्टर से पैसा लेकर पार्कों पर खर्च किया जा सकता है। नासिर बाग, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे तारीखी मुकामात लाहौर का चेहरा है। मुनासिब मनसूबाबंदी ना की गई तो इसे रोकना पड़ेगा। LDA को ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए। तमाम शुगर मिल्स में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हुक्म दिया गया। जैसे शाहिद करीम ने स्मोकतदार केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि नासिर बाग, गवर्नमेंट कॉलेज और इसी नोयत के तारीखी मकामात शहर का चेहरा है। LDA को चाहिए कि इन तारीखी मकामात को खराब करने से हर मुमकिन इज्तनाब करे। अगर मनसूबाबंदी मुनासिब ना हुई तो अदालत को इसे रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा। अदालत ने मजीद कहा कि नासिर बाग मनसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद सोसाइटी के नुमाया और बाशऊर तबकात से तल्लुक रखते हैं, इसलिए इनके मौक़िफ़ को संजीदगी से सुनना जरूरी है। केस की समाअत बारे
PHA के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने सिटी 42 से गुफ्तगू की। अदालत ने इसके ऊपर डायरेक्ट किया है कि एक कमेटी बनी जाए जो DG LDA और DG PHA की सरबराही में सारे सिविल सोसाइटी के कंसर्न सिटीजन से मिलेंगे। हम जो उनकी कंसर्न्स हैं उनको बड़े सेंसिटिव तरीके से ऑन बोर्ड लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी उनकी कंसर्न्स को इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है, कौन सी कंसर्न्स को लॉन्ग टर्म एड्रेस किया जा सकता है, और डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड जो हमारे प्लान्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे कि कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके अंदर पार्क्स को ख़त्म किया जाएगा, बल्कि उनकी ब्यूटिफिकेशन को एनहांस किया जाएगा। जैसे शाहिद करीम ने लाहौर के 804 पार्क्स के हवाले से भी वाज़े पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि इन्वेस्टर से सरमाया लेकर पार्क्स की खूबसूरती पर खर्च किया जा सकता है ताकि शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। PHA के पास कोई 804 पार्क हैं पूरे लाहौर के अंदर, तो क्योंकि कई पार्क्स उस लेवल पे मेंटेन नहीं होते जिस लेवल पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो जज साहब ने कहा है जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी भी है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास करोड़ों रुपए है कि वो डिफरेंट पार्क्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी उनको एडवर्टाइजमेंट करने की इजाज़त होगी और वो पूरा पार्क को फंड करेंगे। अदालत ने शुगर मिल्स से मुतल्लिक अहम हुक्म जारी करते हुए कहा कि तमाम शुगर मिल्स 3 माह के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, वरना ऐसी मिल्स को बंद किया जाएगा। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत, LDA, वासा, ट्रैफिक, पुलिस, महकमा माहौलियात समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान पेश हुए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। रिंग रोड पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज। अरसलान नामी शख्स ने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को अबूर किया। मुकदमा डिफेंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। रिंग रोड पैदल अबूर करने वाले शहरी के खिलाफ पर्चा कट गया। रिंग रोड पुलिस ने मुलजिम को पकड़कर डिफेंसी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा डिफेंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मुकदमा रिंग रोड पुलिस के सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर आमिर महमूद की मदीयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक अरसलान नामी शख्स नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को अबूर कर रहा था। मुलजिम ने ट्रैफिक में खलल डालकर दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। रिंग रोड पुलिस ने मुलजिम को पकड़कर डिफेंसी पुलिस के हवाले कर दिया। किस्तों पर मोटरसाइकिलें देना शहरी के गले पड़ गया। शहरी सादिक खान के नाम पर 23,88,700 के चालान निकल आए। शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड 500 मोटरसाइकिल्स के 2071 चालान भिजवाए जा चुके हैं। शहरी के नाम पर 23,87,700 के चालान। किस्तों पर मोटरसाइकिलें देना शहरी के गले पड़ गया। गढ़ी शाहू के सादिक खान के नाम पर 500 मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। शहरी सादिक खान को सेफ सिटी की जानिब से 500 मोटरसाइकिल्स के 2071 चालान भिजवाए जा चुके। कैंपस पुल पर वार्डन ने मोटरसाइकिल को रोका जो सादिक के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कैंपस पुल पर रोकी गई मोटरसाइकिल के 12,000 रुपए के चालान निकले। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सादिक खान के नाम पर 500 मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। मजीद तहकीक पर पता चला कि 500 मोटरसाइकिल्स के अब तक 2071 चालान हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास जेल अस्पताल रिफॉर्म्स बारे फॉलोअप मीटिंग। बजट ह्यूमन रिसोर्स के मामलात ज़ेर गौर आए। इमरान नज़ीर ने कहा जेल अस्पतालों में तिब्बी आलात अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में जेल अस्पताल रिफॉर्म्स बारे फॉलोअप मीटिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ने कहा सूबे की तमाम जेलों के अस्पताल अब हमारी जिम्मेदारी हैं और जेल अस्पतालों में तिब्बी आलात और अद्वियात की दस्तियाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताएं IT शोबे के फ़रोग़ और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मिशन। अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी इदारे रेपेस्टिक GHL सक्सेस अकेडमी और पीक सोल्यूशन के दरमियान MOU साइन हो गया। पाकिस्तान के ज़हीन नौजवानों को जिद्दत की राह पर गामजन करने का आज़म। नौजवानों को IT के जदीद कोर्सेज करवाए जाएंगे। रैप्सटेक, GHL, सक्सेस एकेडमी और पीक सोल्यूशन के दरमियान मुआहिदा हो गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीक सोल्यूशन मुदस्सिर नईम चौधरी, CEO इंजीनियर्स कॉन्सेप्ट्स अहमद वजीर, CFO रैप्सटेक यावर सिद्दीकी ने दस्तखत किए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन चेयरमैन पाशा सैयद सज्जाद हुसैन मुस्तफ़ा, सीनियर वाइस चेयरमैन राहील इकबाल, अब्दुल वहाब अहमद, साकिब अहमद मुजम्मिल शरीक थे। मुदस्सिर नईम चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को भी जदीद कोर्स कराए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था तो जो GHL की ट्रेनिंग के लिए कम्पिटेंट भी हो और वो कम्पिटेंट इनफ भी हो, तो इसलिए हम लोगों ने रैप्सटेक के साथ MOU साइन किया है ताकि हम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को GHL के ऊपर टेक्निकली स्किल्ड
जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे। CFO रैप्सटेक यावर सिद्दीकी ने कहा कि IT का फरोग मुस्तकबिल की जरूरत है। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को जदीद कोर्सेज करने से रोजगार मिलेगा। करंटली हम 350 लोग एम्प्लॉयड हैं जो कि US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं सिर्फ इस टूल के ऊपर। तो एक छोटा सा टूल है जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, 5 से 7 हज़ार जो हमारा एस्टिमेट है कि इस वक्त भी लोगों की ज़रूरत है। अगर तो वो हम खुद फुलफिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान का एक मेजर चंक ऑफ IT एक्सपोर्ट जो है वो हम इधर से ही कर रहे होंगे। तकरीब में साद मुनीर, अदनान ताहिर, अमाद मलिक, इफ्तिखार हुसैन, तलहा फखर, जुनेद बट शरीक हुए। नौमान अजहर, हाफिजा सायरा, सना कुरैशी, सुहेब साबिर, हामिद महमूद, अजीम अकरम भी तकरीब का हिस्सा थे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं ओ लेवल्स इकनॉमिक्स में आलमी सतह पर इम्तियाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान की होनहार तालिबा फातिमा ने 120 में से 118 नंबर लेकर न सिर्फ वालिदैन बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया है। मेहनत, लगन और काबिलियत, आज हम आपको मिलवा रहे हैं लाहौर की रिहायशी फातिमा से, जिन्होंने ओ लेवल इकनॉमिक्स में आलमी सतह पर टॉप करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आलमी इम्तिहानात में टॉप पोजीशन। फातिमा की ये शानदार कामयाबी उसकी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। 120 में से 118 नंबर हासिल करना किसी भी तालिब इल्म के लिए बड़ा एजाज है और फातिमा ने ये संग मील गैर मामूली लगन के साथ अबूर किया है। टॉप मतलब वर्ल्ड में करना, इसके आगे जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन के लिए बहुत फ़ायदा होता है, बड़ा वैल्यू करते हैं वो इसको ना। मैं आगे इकनॉमिक्स की तरफ ही, मतलब बिज़नेस की फील्ड, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री है, उस तरफ ही जाना चाहूँगी। और मैं बस ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रेजेंट रहें तो घर आके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फातिमा की वालिदा का कहना है कि बेटी की इस कामयाबी ने उनके दिल को खुशी और सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो चाहती हैं कि फातिमा इसी जज्बे और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ती रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि प्राउड फील करवाया फातिमा ने हमें, और एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में फातिमा तो शुरू से बहुत था, उसको तो था कि मैं लूँगी या मैं इस लेवल पे जाऊँगी, लेकिन हमने कभी इतना सीरियस नहीं लिया था इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत खुशी के जज्बात हैं। फातिमा ने कहा कि वो मुस्तकबिल में मौशी तरक्की और पॉलिसी साजी के शोबे में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और फातिमा जैसी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि अगर इन्हें मौके फराहम किए जाएं तो ये दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। लाहौर में श्रीलंकन टूरिज्म शो, श्रीलंकन हाई कमीशन, चेयरमैन कन्वेंशन ब्यूरो, डिप्टी हेड मिशन की शिरकत, श्रीलंका की सियाहत पर तबादला ख्याल किया। श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड फ्रीड सेनोथार्ने ने श्रीलंकन रोड शो में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन श्रीलंकन कन्वेंशन ब्यूरो धीरा हिटाची, डेप्यूटी हेड श्रीलंकन मिशन क्रिस्टी रोबन, श्रीलंकन एयरलाइंस के मैनेजर रोआन वेजिकॉन भी मौजूद थे। हाई कमिश्नर फ्रीड सेनोथार्ने ने टूरिज्म शो में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली जायजा लिया और पाकिस्तान में श्रीलंकन सियाहत के मौके बारे मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका कुदरती हुस्न से मालामाल इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तानी सियाहों को वहाँ जरूर जाना चाहिए। We are a country with rich tourism. We have very beautiful beaches, lush plantations, amazing wildlife, and the very authentic food, and the most importantly brotherly hospitality. So that I invite our Pakistani brothers and sisters to visit the Sri Lanka and see the beauty. तकरीब में शरीक मेहमानों ने श्रीलंकन कल्चर, खानों, टूर पैकेजेस में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब के आखिर में दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गोंडी खुशहाल सिंह में क्रिसमस के मुनासबत से केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त गवंडी खुशहाल सिंह में मौजूद हूँ जहाँ पर क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया है। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी नवाज़ लिद्दर और तारिक मसीह की जानिब से खुसूसी शिरकत की गई है। मसीही बरादरी भी बड़ी तादाद में जो है वो इस तकरीब में शिरकत कर रही है। मज़ीद इसकी क्या तफसीलात हैं, चौधरी नवाज़ लिद्दर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब की मुनासबत से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिसमस के हवाले से ये जो लीग शाल सिंह में सब दोस्तों ने अमजद और ये भाई तारक साहब MPA और मुझे मदू किया है
और सारे दोस्त इधर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बिशारत चेयरमैन रुस्तम और शाली और काफ़ी दोस्त हैं इधर माशाल्लाह, सारों ने मिलकर बड़ी खुशी के साथ ये केक काटा और अपने ख्यालात का इज़हार किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे, हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। तो ये क्रिसमस का जो त्यौहार है, ये तमाम मसीह भाइयों को इसकी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों को, खुसूसन अहले वतन को, कि ये जो क्रिसमस की खुशियाँ हम मिल के मना रहे हैं, ये हमें जो मैसेज दिया है ये हमारी CM साहिबा की दलेरी का एक मैसेज है। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।